Hello students, this is our seventh chapter, plant growth and mineral nutrition. We were studying about in the previous class, we were studying about growth hormone and we have studied almost 4 hormones. First था ऑक्सीन, ये प्राइमरी हार्मोन था. फिर उसके बाद we studied about जिबेरेलिन. उसके बाद we studied साइटोकाइनिन. लास्ट हार्मोन था इथिलीन और एक हार्मोन था एब्सिसिक एसिड. तो यहाँ तक हम लोग ने कल तक स्टडी किया था. इन दिस पार्ट वी आर गोइंग टू स्टार्ट अ वेरी न्यू टॉपिक दैट इज़ फोटो पीरियोडिज्म. ओके, this is very new topic for you students. Photoperiodism, you never heard about this topic in the previous chapters, so concentrate, and it is important as well. Photoperiodism क्या होता है? Higher plant reproduce sexually by producing special characters called flowers. इतना तो हमें पता है कि जो हायर प्लांट्स होते हैं वो लोग रिप्रोड्यूस करते हैं सेक्सुअली बाय द ऑर्गन फ्लावर. वी हैव स्टडीड अबाउट इट. प्लांट एग्जिबिट ट्रांजिशन फ्रॉम वेजिटेटिव ग्रोथ टू रिप्रोडक्टिव ग्रोथ ड्यूरिंग विच फ्लावर्स आर प्रोड्यूस्ड. प्लांट जो है वो वेजिटेटिव ग्रोथ से रिप्रोडक्टिव ग्रोथ का स्टेज को कवर करता है और इसके बीच में वो बहुत ज़्यादा अपने अंदर ग्रोथ ला रहा है. ग्रोथ लाता है तो वेरियस ऑर्गन्स भी प्रोड्यूस होते हैं. उनमें से एक ऑर्गन है हमारा फ्लावर. देन लाइक वेजिटेटिव ग्रोथ, reproductive growth is also influenced by several environmental and nutritional factors. वेजिटेटिव ग्रोथ जैसा, वेजिटेटिव ग्रोथ मीन्स जहाँ पे बहुत ज़्यादा बर्ड ग्रो हो रहा है या जहाँ से लीफ ग्रो हो रही है, जहाँ पे बर्ड्स है, बहुत ज़्यादा बर्ड्स. वेजिटेटिव पार्ट निकालते हैं हम लोग फॉर टिश्यू कल्चर के लिए. रिमेंबर, सो लाइक वेजिटेटिव ग्रोथ, reproductive growth is also influenced by several environmental and nutritional factors. It is also influenced, बहुत ज़्यादा environmental factors है, nutritional factors है. We have to study about nutritions as well. Among the environmental factor, light and temperature exert profound influence on flowering. We all know about it. The plant need light and temperature. Why? Because of light and temperature only plant can reproduce. वो photosynthesis कर सकता है. The influence of light is known as photoperiodism. जो light का influence, okay, the influence of light is known as photoperiodism, and that of temperature is known as vernalization. So we are going to study about this both the topics one by one, and both the topic are very important. photoperiodism क्या है? ये जो light का influence है, जो environmental factor में आता है for growth, the influence of light is known as photoperiodism. Photo means light होता है, and that of temperature is vernalization. Then light as an environmental factor influences germination of seed. लाइट को अगर हम लोग एक environmental factor के हिसाब से कंसिडर करते हैं, तो light as an environmental factor influence, what does it influence? It influence germination of seed, vegetative growth, photosynthesis, etc. Clear हो गया students ये point? Germination of seed, vegetative growth, photosynthesis, etc.
लाइट एज अ फैक्टर हैज़ थ्री एस्पेक्ट्स. लाइट के पास थ्री एस्पेक्ट्स है. पहला क्वालिटी, इंटेंसिटी, ड्यूरेशन ऑफ लाइट. क्वालिटी मतलब कितना क्वालिटी है लाइट का, कितना परसेंट वो प्लांट पे आके गिर रही है. इंटेंसिटी मतलब कितने टाइम तक आ रही है. एंड इंटेंसिटी होगी कितनी देर तक कंटिन्यूस आ रही है, या रुक रुक के आ रही है, या पूरे प्लांट पे आ रही है, या थोड़े प्लांट पे आ रही है. और ड्यूरेशन में होगा कि कितने टाइम तक आ रही है. तो ये सारी चीज़ें फैक्टर है लाइट के. लाइट के फैक्टर्स है थ्री. पहला है क्वालिटी, इंटेंसिटी, ड्यूरेशन ऑफ लाइट. देन it is the duration of light then it is a duration of light that has profound effect on flowering in higher plant. Because of duration of light, flowering plant जो है वो grow होते हैं and they become higher plants. Then the term photoperiodism was used by Turner and Allard in 1920. This Turner and Allard were the first person who introduced the term photoperiodism, and it was introduced in 1920. They were studying, okay, coming to the next slide. They were studying the flowering behavior in plants, soybean and Maryland mammoth variety of tobacco. They were studying the flowering behavior. They found that soybean plant flowers during late summer and tobacco variety during winter, irrespective of the germination and growing season. They studied effects of different temperatures, nutrition, soil, moisture, etc. in respect of flowering. None of these were found to regulate flowering. However, experimentally, they found that the exposure to specific duration of light, that is photoperiod, has profound influence on flowering. Clear, students? They were studying about soybean and Maryland mammoth. Maryland mammoth is a variety of tobacco, and soybean, we all know what is soybean. They found that soybean plant flowers during late summer. Then students, वो लोग ने सोयाबीन और मैरीलैंड मैमोथ के ऊपर स्टडी कर रहे थे. उसमें वो लोग ने they found that soybean plant flowers during last summer, उनके फ्लावर आए लास्ट समर में, और टबैको वैरायटी ड्यूरिंग विंटर. दो फिर वो लोग ने एक एक करके उनके सारे प्रोसेस को स्टडी किया फ्रॉम जर्मिनेशन एंड ग्रोइंग सीजन. दे स्टडीड एवरीथिंग इन डीपली. फिर उसके बाद द स्टडीड इफ़ेक्ट ऑफ डिफरेंट टेम्परेचर्स. ये जो डिफरेंट टेम्परेचर का स्टडी इफ़ेक्ट था उसका. फिर न्यूट्रिशन का क्या इफ़ेक्ट है, सॉइल मॉइस्चर का क्या इफ़ेक्ट है. दे स्टडीड एवरीथिंग in respect of flowering. None of these were found to regulate flowering. इनमें से कोई भी फ्लावरिंग करने में हेल्प नहीं करता था. ओके. Then, however, experimentally they found that the exposure to specific duration of light has profound influence on flowering. जो exposure of light है कि लाइट का क्या, कितना वो सनलाइट में एक्सपोज होता है, वो डिसाइड करता है कि फ्लावरिंग उसमें कितनी होगी या नहीं होगी. ये लोगों ने, ये जो दो साइंटिस्ट थे हमारे, ये दोनों ने मिलके इस पे एक्सपेरिमेंट किया, इस पे स्टडी किया. एंड आफ्टर एवरी स्टडी दे केम टू a conclusion that
They found that the exposure to specific duration of light has profound influence on flowering. They examined the effect of day length on flowering by using artificial illumination. ये लोग ने क्या एग्जामिन किया कि जो इफ़ेक्ट है डे लाइट का ऑन फ्लावरिंग बाय यूजिंग आर्टिफिशियल इल्यूमिनेशन. They examined the effect of day length on flowering by using artificial illumination. They concluded that the relative length of the day, कि जितना लेंथ है डे का, was most crucial in the growth and development of flowers, to which they coined the term photoperiodism. क्लियर स्टूडेंट्स के जितना भी लेंथ होगा डे का, लॉन्ग डे एंड इफ़ द प्लांट्स आर गेटिंग मोर सनलाइट, तो उनमें फ्लावरिंग का जो डेवलपमेंट है वो ज़्यादा होगा, बहुत ज़्यादा हेल्दी होगा, ग्रोथ फास्ट होगी. एंड इस चीज़ को ये लोग ने फोटो पीरियोडिज़म के नाम से रखे. बेस्ड ऑन द फोटो पीरियोडिज़म रिस्पॉन्स, photoperiodic response, plant were classified into 3 categories. प्लांट 3 कैटेगरीज में क्लासीफाई हुआ. पहला शॉर्ट डे प्लांट, फिर लॉन्ग डे प्लांट एंड देन डे न्यूट्रल प्लांट. शॉर्ट डे प्लांट है SDP, लॉन्ग डे प्लांट है LDP एंड डे न्यूट्रल प्लांट है DNP. Then we will study about each and every plant deeply one by one. Now, do you know, ma'am, organs for reception of photoperiodic stimulus? What are the organs which are responsible for photoperiodic stimulus, ma'am? Leaf is the chief organ for receiving the photoperiodic stimulus. सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट ऑर्गन है लीफ. ओके, एज डिमॉन्स्ट्रेटेड बाय नॉफ इन 1934. देन defoliated plants will not flower even if the plants are exposed to proper duration of light. अगर defoliated plants है, defoliated plants means those plants which does not have leaves. ओके, तो ऐसा प्लांट जो कि प्रॉपरली न्यूट्रिशन नहीं है उसे, ऐसे प्लांट कभी भी फ्लावर को प्रोड्यूस नहीं करेगा, इवन इफ द प्लांट्स आर एक्सपोज टू प्रॉपर ड्यूरेशन ऑफ लीफ. ओके, देन फोटोपीरियोडिक स्टिमुलस, किससे फोटोपीरियोडिज्म स्टिमुलेट होता है? इट इज़ अ केमिकल स्टिमुलस ट्रांसपोर्टेड थ्रू फाइलम एंड इज कॉल्ड फ्लोरीजन. ये केमिकल स्टिमुलस है जो कि फाइलम के थ्रू ट्रांसपोर्ट होता है, एंड इट इज़ कॉल्ड एज फ्लोरीजन विच इज़ हार्मोनल इन नेचर. देन photochemical receptor in the leaves are the biloprotein. Biloprotein एक टाइप का पिगमेंट है that is located in the cell membrane, and this are called as phytochromes. Okay, then blue wavelength of light influences flowering. Blue wavelength of light influences flowering. ये इम्पॉर्टेंट है फॉर नीट. कौन सी वेवलेंथ से फ्लावरिंग इन्फ्लुएंस होती है? दैट इज़ ब्लू वेवलेंथ. देन कमिंग टू द नेक्स्ट स्लाइड. अब ये हम लोग टाइप्स पे आ गए. हमारे यहाँ पे हम लोग डिस्कस किए थे फोटोपीरियोडिज्म के 3 मेन कैटेगरीज है, एंड वी आर गोइंग टू स्टडी वन बाय वन. तो उसमें से पहला कैटेगरी है हमारा short day plant, that is SDP. What is SDP? This plant usually flower during winter and late summer when day length is shorter than the critical photo period. Critical photo period is that length of period above or below which flowering occurs
These are called long night plant because they require long uninterrupted dark period or night for flowering. So students, this plant usually flower during winter. विंटर के टाइम पे फ्लावर करता है एंड लेट समर के टाइम पे फ्लावर करता है व्हेन डे लेंथ इज शॉर्ट देन द क्रिटिकल फोटो पीरियड. अब फोटो पीरियड क्या है? क्रिटिकल फोटो पीरियड इज दैट लेंथ ऑफ फोटो पीरियड अबव और बिलो विच फ्लावरिंग अकर्स. कि फ्लावरिंग जो है वो या तो इस फोटो पीरियड के बाद होगी या तो उस फोटो पीरियड के पहले होगी. तो जो ऐसे टाइम के पीरियड होता है, ऐसा टाइम पीरियड होता है, उसे बोलते हैं क्रिटिकल फोटो पीरियड. एंड दिस आर कॉल्ड लॉन्ग नाइट प्लांट्स बिकॉज दे रिक्वायर लॉन्ग अनइंटरप्टेड डार्क पीरियड और नाइट फॉर फ्लावरिंग. उन्हें लॉन्ग नाइट चाहिए. दे आर लॉन्ग नाइट प्लांट बिकॉज दे रिक्वायर लॉन्ग अनइंटरप्टेड डार्क पीरियड. एक ऐसा डार्क पीरियड जिसमें कोई इंटरप्शन नहीं हो और वो लोग नाइट में फ्लावरिंग करते हैं. ओके, दे आर शॉर्ट डे प्लांट. इफ डार्क पीरियड इज इंटरप्टेड इवन बाय अ फ्लैश ऑफ लाइट, शॉर्ट डे प्लांट विल नॉट फ्लावर. अगर एक नॉर्मल सी फ्लैश ऑफ लाइट से भी उनका डार्क पीरियड इंटरप्टेड हो गया तो भी वो लोग फ्लावरिंग नहीं करेंगे. Some of the short day plants are dahlia, aster, tobacco, soybean, then coluber, then chrysanthemum, xanthium. ये सारे जो plants हैं ये है short day plant. With examples they are important. Then coming to the next type है हमारा long day plant. Plant that flower during summer are called long day plant. समर के टाइम पे ये लोग फ्लावर कर रहे हैं तो ऑब्वियस सी बात है ये लोग लॉन्ग डे प्लांट ही हो गए. दे रिक्वायर लॉन्ग ड्यूरेशन ऑफ लाइट देन द क्रिटिकल फोटो पीरियड फॉर फ्लावरिंग. इन्हें बहुत ज़्यादा समय तक लाइट का ड्यूरेशन चाहिए. ओके, फॉर फ्लावरिंग. And they are called short night plant as they require short dark period. Clear? When long dark period is interrupted by a brief flash of light, LD plants can flower. अगर ये long dark period जो होता है उनका, अब अगर ये इंटरप्टेड हो गया बाय अ वेरी मच ऑफ लाइट, ब्रीफ मतलब बहुत ज़्यादा फ्लैश ऑफ लाइट, तो भी लॉन्ग डे प्लांट्स कैन फ्लावर. अब इसके एग्जाम्पल है पी, रेडिश, शुगर बीट, कैबेज, स्पिनच, wheat, poppy, etc. These are the examples of long day plant. Coming to the next slide. Next slide है day neutral plant, DNP. These plants flower throughout the year round. मतलब इन्हें डे और नाइट से कोई फ़र्क ही नहीं है. ये लोग पूरे ईयर फ्लावर करेंगे इंडिपेंडेंट ऑफ ड्यूरेशन ऑफ लाइट. ड्यूरेशन ऑफ लाइट क्या है? फोटो पीरियड. दे आर नॉट डिपेंडेंट ऑन ड्यूरेशन ऑफ लाइट, देयरफॉर दे आर independent of duration of light. They do not require specific period to flower. उन्हें कोई specific period नहीं चाहिए फ्लावरिंग करने के लिए. Therefore they are called day neutral plants. For example, cucumber, tomato, cotton, sunflower, maize, balsam, etc. These are day neutral plants. Then हमारे तीनों टॉपिक्स ख़त्म हो गए यहाँ पे. पहला था short day plant, second we studied long day plant, third we studied day neutral plant. Now moving forward, ये है
फोटो पीरियोडिज्म का डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन। ओके, पहला वाला है रिलेटिव रिक्वायर्स अ रिलेटिव लॉन्ग ऑफ अनइंटरप्टेड डार्कनेस। अब ये डार्कनेस है, अब अगर ये डार्कनेस अगर किसी ज़्यादा लाइट से इंटरप्टेड हो गई, ओके, तो फ्लावरिंग नहीं होगी। अगर डार्कनेस ज़्यादा है और लाइट कम है तो फ्लावर हो रहा है। अगर डार्कनेस ज़्यादा है बट फिर भी फ्लैश ऑफ लाइट बीच में आ रहा है, ओके, तो भी फ्लावरिंग नहीं होगी। ये है अपना रिलेटिव ऑफ लॉन्ग ऑफ अनइंटरप्टेड डार्कनेस वाला। एंड सेकेंड वाला है रिक्वायर्स अ रिलेटिव स्मॉल ड्यूरेशन ऑफ डार्कनेस एट ऑल। पहला है लॉन्ग लाइट शॉर्ट डार्कनेस, फ्लावरिंग हो गई। अगर डार्कनेस ज़्यादा है और दिन कम है, लाइट कम है, तो फ्लावरिंग नहीं होगी। अगर डार्कनेस ज़्यादा है, थोड़ा लाइट कम है, और अगर उस डार्कनेस में अगर ब्रीफ ऑफ लाइट आती है, ओके, तो भी फ्लावरिंग हो जाएगी। तो ये है अपना दोनों भी कॉन्सेप्ट डायग्रामेटिकली फोटो पीरियोडिज्म का। Then I hope you guys are clear with photoperiodism. Moving to the next topic है हमारा phytochrome. What is phytochrome? Phyto मतलब होता है light, students. So let's see what is phytochrome. Hendricks and Borthwick in 1952 observed that flowering in short day plant is inhibited if dark period is interrupted even by a flash of red light of 616 nanometer. If it is immediately followed by far red light 730 nm, then SD plant will flower. This observation led them to conclude that some pigment system in plant receive the photoperiodic stimulus, and this pigment protein are called phytochromes. The leaves produce light receiving proteinaceous pigment called phytochrome that induce flowering. Now students, हैंड्रिक्स और बॉर्थविक 1952 में ये लोग ने ऑब्ज़र्व किया था कि फ्लावरिंग जो है इन शॉर्ट डे प्लांट इज़ इनहिबिटेड, दैट फ्लावरिंग इज़ शॉर्ट डे प्लांट इज़ इनहिबिटेड एंड इफ़ डार्क पीरियड इज़ इंटरप्टेड, अगर इस टाइम पे डार्क पीरियड आ गया व फ्लैश ऑफ रेड लाइट ऑफ 660 nm, देन इमीडिएटली अगर फार रेड लाइट है, दूर से फार रेड लाइट आ रही है, फार रेड लाइट मीन्स स्टूडेंट्स वो रेड लाइट जो बहुत ज़्यादा एक्सट्रीम हो, एक्सट्रीमली रेड हो, एंड उस जो ह्यूमन आइज़ अपने विजुअल आइज से देख सके, दैट टाइप ऑफ लाइट जो कि बहुत ज़्यादा एक्सट्रीमली रेड होती है, वैसे लाइट को बोलते हैं फार रेड लाइट। अगर 660 nm ऑफ लाइट इंटरप्ट होती है और उसके बाद इमीडिएटली 720 nm दे दिया, देन SD प्लांट विल फ्लावर. This observation led them to conclude that some pigment system in plant receive the photoperiodic stimulus. इस वजह से क्या होगा, ये लोग ने कंक्लूड किया इस ऑब्जर्वेशन से कि कोई पिगमेंट सिस्टम है प्लांट्स में जो रिसीव करता है फोटो पीरियोडिक स्टिमुलस। पिगमेंट मतलब कोई लाइट रिसीव करता है, ऐसे वाला। तो ये जो पिगमेंट प्रोटीन था उसको वो लोग ने फाइटोक्रोम्स करके बुलाया। प्लांट में पिगमेंट प्रोटीन होता है, सो देयरफॉर दे कॉल्ड इट एज फाइटोक्रोम्स। देन the leaves produce light receiving proteinaceous pigment called phytochrome.
दैट इंड्यूस फ्लावरिंग। लीव्स जो है वो प्रोड्यूस करती है लाइट रिसीविंग प्रोटेनेशियस पिगमेंट। उनके पास लाइट रिसीविंग प्रोटीन पिगमेंट होता है and they called it as phytochrome that induce flowering. It exists in two interconvertible forms. Wise red के लिए PR and far red के लिए PFR. When PFR absorbs far red light, it is converted into PR एंड वाइस वर्सा। मतलब अगर पी आर एब्जॉर्ब करते है रेड लाइट तो वो कन्वर्ट हो जाएगी इनटू पी एफ आर, उल्टा होता है। एंड दिस आर लोकेटेड इन द सेल मेम्ब्रेन ऑफ ग्रीन सेल्स। एंड दिस प्रोटीन कहाँ लोकेट होते हैं? इन द सेल मेम्ब्रेन ऑफ ग्रीन सेल में ये प्रोटीन लोकेट होते हैं। क्लियर स्टूडेंट्स? प्लांट में एक पिगमेंटेड प्रोटीन करके कोई चीज़ प्रेजेंट है, उस पिगमेंटेड प्रोटीन को नाम दिया गया है एज फाइटोक्रोम। अब ये जो लीव है ये प्रोड्यूस करती है लाइट रिसीविंग प्रोटीनस पिगमेंट एंड इट इज़ कॉल्ड एज फाइटोक्रोम दैट इंड्यूस फ्लावरिंग। फिर शॉर्ट फॉर्म्स है कि एक है रेड लाइट और एक है फार रेड। तो रेड जो है वो पी आर है और फार रेड जो है पी एफ आर है। अगर पी एफ आर एब्जॉर्ब करती है फार रेड लाइट को एंड इट इज़ कन्वर्टेड इनटू पी आर। पी आर क्या है? रेड प्रोटीन वाला लाइट एंड ऐसा ही वाइस वर्सा होता है। एंड दिस प्रोटीन्स आर लोकेटेड इन द सेल मेम्ब्रेन ऑफ ग्रीन सेल। देन स्टूडेंट्स ये अपना डायग्रामेटिक प्रेजेंटेशन है कि पी आर के पास लाइट अगर आती है तो वो एफ पी एफ आर बन जाता है, और अगर डार्कनेस में ऐसे होता है तो वो पी आर बन जाता है। ओके 620 में 660 एनएम में वो पी एफ आर बनता है, और 730 एनएम में फार रेड लाइट जब एब्जॉर्ब होती है तो पी एफ आर पी आर बनता है। ड्यूरिंग डे टाइम पी एफ आर एक्यूमुलेट्स इन द प्लांट। ओके अभी मैंने जो बोला वो आ गया। डे टाइम में पी एफ आर एक्यूमुलेट होता है प्लांट में। इट इनहिबिट्स फ्लावरिंग इन शॉर्ट डे प्लांट। पी एफ आर फ्लावरिंग को इनहिबिट करता है बट इनिशिएट्स फ्लावरिंग इन लॉन्ग डे प्लांट। क्लियर स्टूडेंट्स? बट ड्यूरिंग डार्क पीरियड में क्या होता है? मतलब रात के टाइम पे पी एफ आर चेंजेस इनटू पी आर। ओके पी एफ आर पी आर में चेंज होता है। इट स्टिम्युलेट या प्रोमोट फ्लावरिंग इन शॉर्ट डे प्लांट एंड इनहिबिट्स फ्लावरिंग इन लॉन्ग डे प्लांट, पूरा वाइस वर्सा। तो ये था स्टूडेंट्स फाइटोक्रोम का। एक बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है और बहुत ज़्यादा इजी है। ओके सिर्फ वाइस वर्सा जो है वो हमें समझना है। देन ये टेक्स्ट बुक में दिया हुआ है, ऑलवेज रिमेंबर बोल के, कंट्रोल ऑफ मॉर्फोजेनेसिस बाय लाइट एंड फाइटोक्रोम। अगर मॉर्फोजेनेसिस कंट्रोल करते हैं, जो भी मॉर्फोजेनेसिस होता है मतलब स्ट्रक्चर का फॉर्मेशन हो रहा है, अगर वो कंट्रोल हो रहा है बाय लाइट एंड फाइटोक्रोम देन इट इज़ कॉल्ड फोटोमॉर्फोजेनेसिस। सो क्लियर स्टूडेंट्स? ये वाली चीज़ भी हमें क्लियर हो गई। वी विल स्टॉप दिस वीडियो नाउ। इन द नेक्स्ट वीडियो वी विल कंटिन्यू विद द नेक्स्ट टॉपिक। थैंक यू स्टूडेंट्स।